Good morning, everyone. I'm Sayukta from Beautiful Spotless Skin Team, and I'm sure all of you must be keeping good health. You must have come across people, especially women, with brown color patches on their face. They look like freckle, like spots forming large flat patches. This is nothing but melasma. Melasma is a very common chronic skin condition in India. According to a study conducted across 4 Indian cities, reveals that more than 80% of the population presents skin color heterogeneity on the face, irrespective of their age and gender. This heterogeneity mainly results from hyperpigmented spots and melasma. Indian skin tone is more prone to pigmentary disorders. It occurs mainly in women 90% and 10% of males of all ethnic and racial groups. Around 20 to 30% of 40 to 65-year-old women present a facial melasma. Melasma and hyperpigmentation, generally ignored as sign of aging and often misunderstood skin condition. Melasma sufferers have been misinformed about aspects of this common hyperpigmentation issue. This can lead to frustrating setback in treatment. So, to avoid all these hassles and to keep you informed, today we are here to know more about management of melasma from an expert. So let me introduce Dr. Shivani Saini, an assistant professor at Government Medical College, Pali, Rajasthan. Specializing in dermatology, she holds esteemed qualifications including MBBS, MD, and DNB, reflecting her dedication to medical excellence. With 21 publications in national and international journals, her research has made significant contributions to the field of dermatology. Notably, her work on dermatoscopic features earned her recognition as the author of the best letter to editor in the Indian Dermatology Online Journal in 2023. She has shared her insights through 10 presentations at various academic gatherings. Dr. Shivani's active participation demonstrates her commitment to advancing dermatological knowledge and fostering collaboration within the community. Her areas of interest include clinical dermatology, pediatric dermatology, and dermatosurgery. A life member of both the Indian Association of Dermatologists, Venerologists, and Leprologists, and the Association of Cutaneous Surgeons of India. She also serves as a reviewer for esteemed journals like the International Journal of Dermatology and the Indian Dermatology Online Journal. Today, we are privileged to have her with us, and she will be sharing insights of melasma and its management. We extend our heartfelt gratitude to you, Doctor, for joining us. A very Thank warm you. welcome to you. Thank you. Thank you so much for introducing me. Thank you. So, Dr. As today we are going to talk about melasma, and melasma is quite common in our society, especially among women. So, first of all, we would like to understand कि melasma क्या होता है? What is melasma? ओके मेलाज्मा इन लेमन वर्ड हम बोलते हैं झाइयाँ या फिर छाया. मेलाज्मा एक तरह का एक्वायर्ड पिगमेंटरी डिसऑर्डर है. यूजुअली फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है 9:1 के रेशो में. फीमेल इज टू मेल का रेशो 9:1 होता है. यूजुअली क्या होता है, लाइट टू डार्क ग्रे कलर के पैचेस प्रेजेंट होते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ओवर द फेस. इसमें एमएसएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एमएसएच मीन्स मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ऑल्सो कॉर्टियोट्रोपिन हार्मोन. ये मिलेनोसोम्स को एक्टिवेट करते हैं सो दैट ये मिलेनोसोम्स प्रोवाइड करें एंड देन मिलेनिन प्रोडक्शन बढ़ता है जिसकी वजह से मिलाज्मा होता है. राइट. तो ये बेसिकली है कि मलाज़मा क्या है और क्या रेशो है महिलाओं और पुरुषों की अगर हम बात करें। मलाज़मा होता क्यों है डॉक्टर? मतलब डेफ़िनिटली आपने बताया कि जो मेलानिन रेशो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी व्हाट आर द अदर कॉजेज़ व्हिच लीड्स टू मलाज़मा? Melasma basically is a multifactorial disorder. Means it has many causes and also many factors, which causes also as well as accelerate the melasma. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एथनिक फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर. एथनिक मीन्स इट्स मोर कॉमन इन लाइट ब्राउन कलर पीपल एंड हु इज मोर टूवर्ड्स टू द सन एक्सपोजर. उनके अंदर ये ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंट होता है. सेकेंड फैक्टर होता है हॉर्मोनल फैक्टर. हॉर्मोनल फैक्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के अंदर यूजुअली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एमएसएच एंड कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं जो मेलानोसोम्स को एक्टिवेट करता है. सेकेंड थिंग आती है ओसीटी. इफ फीमेल्स आर ऑन ओसीटी मीन्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसके अंदर ऑलरेडी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है जो ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीज करता है. थर्ड कंडीशन आती है
if it is associated with any autoimmune disorders like thyroid disorders, अगर पेशेंट को थायराइड डिसऑर्डर है तो 4-fold इंक्रीज रिस्क होता है, इसको मिलाज्मा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट कंडीशन आती है कॉस्मेटिक फैक्टर्स, और नेक्स्ट कंडीशन आती है ड्रग इंड्यूस्ड. एंटी सीजर जो मेडिकेशंस होती है वो कॉमनली मिलाज्मा को एक्सीलरेट करती है. तो मैनी फैक्टर्स हैं, आप किसी एक फैक्टर को लेके नहीं रख सकते हो, मल्टीपल फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं इससे. बिल्कुल, तो बहुत सारी वजह हैं जिसके चलते मिलाज़्मा हो सकता है। हम्म. डॉक्टर, मिलाज़्मा तो एक टर्म है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो टर्म है ये आम लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। आम लोग मिलाज़्मा को उस तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि पिगमेंटरी इश्यूज़ है या पिगमेंटेशन है या हाइपर पिगमेंटेशन है। तो मिलाज़्मा और हाइपर पिगमेंटेशन ये एक ही चीज़ है या ये दोनों अलग-अलग? मिलाज्मा इज वन ऑफ काइंड ऑफ पिगमेंटरी डिसऑर्डर. और भी अलग अलग तरह के पिगमेंटरी डिसऑर्डर होते हैं, सबको देखने में ऐसा ही लगता है कि पिगमेंटेशन हो गया है, बट मिलाज्मा को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं अदर पिगमेंटरी डिसऑर्डर से. पिगमेंटरी डिसऑर्डर के अंदर लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसस एंड एशिडर्मेटोसिस एंड अदर कंजेनाइटल पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिनको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. मोस्ट कॉमनली हम इसको डायग्नोज करते हैं क्लिनिकली या फिर बाय विजुअलाइजिंग. इफ एनी सीवियर केसेस जहाँ पर ये किसी और बीमारी से साथ साथ कंबाइंड होता है, तो हम वुडलैंड एग्जामिनेशन भी यूज़ करते हैं, साथ साथ में डर्मोस्कोपी भी यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट वी गो टू द स्किन बायोप्सी, देन इट कैन बी इजीली डायग्नोस्ड विद अदर कंडीशंस. बिल्कुल। तो ये जो आपने टेक्निक्स बताई ये बेसिकली डायग्नोसिस के लिए है, कि किस तरह से डायग्नोस किया जाता है और बेसिकली जो आपने कहा कि वो देखकर ही पता चल जाता है जब एक पेशेंट आपके पास आता है। अगेन अगर मैं बात करूँ क्योंकि सिम्पटम्स एज़ सच मेरे ख्याल से इसमें एसोसिएटेड नहीं है, बट साइन्स हैं, लोग कैसे समझे कि जो उनके स्किन पर हो रहा है वो मेलाज़्मा है? क्या ये सिर्फ़ चेहरे पर होता है या दूसरे बॉडी पार्ट्स भी इसमें एसोसिएटेड होते हैं और आम लोग किस तरह से इसे समझें? ओके, ये एक तरह का पिगमेंटेशन है जो यूजुअली लोग बोलते हैं कि छाइयाँ हैं, बट अगर पूरी तरह से डायग्नोज करना है तो उसके लिए आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा. फिर भी एक रफ आइडिया ये होता है कि यूजुअली सन एक्सपोज्ड एरिया पे प्रेजेंट होता है, मोस्ट कॉमनली फेस पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जहाँ पर यूवी रेज डायरेक्टली प्रेजेंट होती है. मीन्स कॉन्वेक्सिटीज ऑफ आर फेस, मीन्स मलार एरियाज हो गया, फोरहेड हो गया. इसके अलावा भी अपर लिप, आईब्रो वाले एरिया पे प्रेजेंट हो सकता है, एंड वेरी रेयर केसेस में फोर आर्म्स को भी इंक्लूड कर सकता है. हुँ। कौन वो लोग हैं जो रिस्क पे होते हैं मेलाज़्मा? कई बार हमने देखा है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको मेलाज़्मा होता है, तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? हू आर दोज़ हू आर एट रिस्क? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन स्किन है वो थर्ड टू फोर्थ फिट्सपैट्रिक टाइप ऑफ स्किन है. हुँ, पूरी इंडियन स्किन ही इसके लिए एक रिस्क फैक्टर है, ओके, मोस्ट कॉमनली बिकॉज वी हैव टेंडेंसी टू टैन. टैन होने की टेंडेंसी जिन पे ज़्यादा होती है उनको मिलाज्मा होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. सेकेंड थिंग आती है यूवी रेज. जहाँ पर यूवी रेज ज़्यादा होंगी या फिर वी कैन से कि डे का मैक्सिमम टाइम अप फ्रॉम 10 o'clock अप टू 4 o'clock हाई रिस्क टाइम होता है, जिसके अंदर यूवी रेज बहुत ज़्यादा रेज आती है. थर्ड कंडीशन होती है प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोन वैसे ही फ्लैक्चुएट होते हैं. फोर्थ कंडीशन होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. फिफ्थ कंडीशन है अगर कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर उसके साथ एसोसिएटेड है तो. हुँ। फैमिली हिस्ट्री आल्सो प्लेज़ अ रोल? फैमिली हिस्ट्री, some studies says if a patient has family history of melasma, then up to 50% of cases chances की melasma होने के chances होते हैं. It's not हुँ, hereditary but it was found. यस, यस। डॉक्टर जैसा कि आपने कहा एक बहुत बड़ा कल्प्रिट सन एक्सपोज़र है या हार्मफुल रेडिएशंस हैं। तो ऐसे में किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेलाज़्मा को या डिले कर सकते हैं अगर होना ही है तो? तो उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फोटो प्रोटेक्टिव मेजर्स. वी हैव टू अडेप्ट फॉर फोटो प्रोटेक्टिव मेजर्स एज हाँ आर स्किन इज सेकेंड टू थर्ड एंड फोर्थ फिट्सपैट्रिक टाइप ऑफ स्किन. सो हमें क्या करना है, when we go out or when we go out on vacation, so try to wear fully covered clothes.
स्पेशली लाइट कलर्ड क्लोथ्स या फिर lightly weighted clothes we have to wear. Second thing is we have to cover our face. Means we can use wide brimmed hat or cap or facial mask we can use. And third thing is sunscreen. We have to use broad spectrum sunscreen always. If we go out, if we don't go out, we have to ओके। use these protective measures. बिल्कुल। तो ये आपने कहा कि जितना हम लूज़ एंड कवर्ड कपड़े पहनेंगे, अपने बॉडी पार्ट्स को कवर रखेंगे या फिर फिज़िकल बैरियर्स इस्तेमाल करेंगे या फिर सनस्क्रीन का इस्तेमाल तो हमें करना ही है। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल आपको रेगुलरली करना है, चाहे आप बाहर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। आम तौर पे हमें ये लगता है कि सनस्क्रीन यानी जो हमें सन एक्सपोज़र से जो भी हार्म हमारी स्किन को हो रहा है, उससे हमें बचाता है। ऐसे में जब हम घर के बाहर जाते हैं, तो ही हम सनस्क्रीन लगाते हैं। कई लोग तो रेगुलरली लगाते भी नहीं हैं, बीच वेकेशन पे गए या ऐसा कुछ है, तभी सनस्क्रीन वो लगाते हैं। तो सनस्क्रीन क्यों ज़रूरी है हर वक़्त लगाना डॉक्टर? सनस्क्रीन इट्स नॉट कंप्लीट प्रोटेक्शन. ये एक तरह का कुछ मेजर तक, कुछ एक्सटेंट तक हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. तो यूवी रेस को ये रिफ्लेक्ट करने के लिए काम आता है. हुँ, जो यूवी रेस हमारी यूवी ए, यूवी बी और इंफ्रारेड रेज आती हैं, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है. सो वी हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन एवरी 2 आवर्स. वो थोड़ा इम्पॉसिबल है, बट एटलीस्ट मिनिमम 2 to 3 times a day बिफोर सनसेट. ओके। बिल्कुल। और अगेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर यू आर गोइंग आउट और नॉट आपका सन या. एक्सपोज़र है या नहीं है, आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है। हम्म. ओके। सनस्क्रीन को लेकर थोड़ी और हम बात कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों में होता है। लोगों का कहना होता है कि हम सनस्क्रीन लगाते हैं, वी डोंट लाइक द व्हाइट कास्ट दैट इट फॉर्म्स और इट मेक्स आवर स्किन स्वेट अ लॉट, इट मेक्स आवर स्किन डल, पैची एटसेट्रा एटसेट्रा और इस वजह से वो सनस्क्रीन रेगुलरली नहीं लगाते हैं। कई बार तो हम अपनी स्किन के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से सही सनस्क्रीन खरीद ही नहीं पाते हैं। तो इस समस्या से किस तरह से निजात हमें मिल सकती इसका एक ही उपाय है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उन्हें बताइए कि आपकी स्किन कैसी है. दे विल इंस्पेक्ट देयर स्किन कि ड्राई टाइप स्किन है, ऑयली टाइप स्किन है, मिक्स टाइप स्किन है. सो सनस्क्रीन सबकी अलग अलग आती है. कॉस्मेटिकली सनस्क्रीन जो प्रोडक्ट होते हैं वो हर किसी को सूट नहीं करते हैं. दे कैन कॉज रिएक्शंस ऑल्सो इफ यू डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम डर्मेटोलॉजिस्ट. इसलिए क्योंकि ओवर द काउंटर इतने प्रोडक्ट्स आजकल अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग सनस्क्रीन्स तो ऐसे में सही सनस्क्रीन हम चुनें इसके लिए हम मदद ले सकते हैं हमारे डर्मा की और वो हमें हेल्प करेंगे चूजिंग द राइट सनस्क्रीन एज पर आवर स्किन टाइप एज पर आवर रूटीन एटसेट्रा. डॉक्टर मिलाज्मा पर हम बात कर रहे हैं और आपने बताया कि किस तरह से डायग्नोस हो सकता है और किस तरह से प्रिवेंट हम कर सकते हैं या फिर प्रोलॉन्ग हम कर सकते हैं. ट्रीटमेंट किस तरह से मेलाज़्मा का संभव है? क्या कुछ ऑप्शंस अवेलेबल ओके, दिस इज अ बिलियन डॉलर क्वेश्चन. हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोटो प्रोडक्टिव मेजर्स. इफ़ हुँ, यू डोंट हैव मिलाज्मा और इफ़ यू हैव मिलाज्मा, फोटो प्रोटेक्टिव मेजर्स हमें यूज़ करने ही हैं. जिसके अंदर मैंने आपको बताया फुली कवर्ड क्लोथ्स पहनने हैं. सेकेंड थिंग इज़ फेस कवर करना है. थर्ड थिंग इज़ सनस्क्रीन यूज़ करनी है. दीज आर प्रोटेक्टिव मेजर्स. इसके अलावा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में टॉपिकल ट्रीटमेंट आता है जिसके अंदर ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम आती है विच इंक्लूड हाइड्रोकिनोन, ट्रेटिनोइन एंड फ्लूसिनोलोन, जो कि हम थोड़े टाइम के लिए देते हैं. उसके अलावा अदर डीपिगमेंटिंग एजेंट्स होते हैं एजेलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड. सो वी कैन यूज दैम अकॉर्डिंग टू दियर स्किन टाइप एंड दियर रिस्पॉन्स. सेकेंड कंडीशन इज नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो है केमिकल पीलिंग. केमिकल पीलिंग के अंदर भी हम लोग डीमिलेनाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं. सो टाइम टू टाइम दे गेट रिजल्ट बाय दैट. सेकेंड थिंग आती है माइक्रोडर्मल अब्रेजन. एंड थर्ड थिंग इज लेज़र. लेज़र इज़ द लास्ट ऑप्शन. उसमें हम एनडीआर लेज़र यूज़ करते हैं, कार्बन पील लेज़र यूज़ करते हैं. बट it हुँ, their result vary from patient to patient. हुँ. जो आपने प्रोसीजर्स खास तौर पे बताए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पीलिंग टू लेजर्स एटसेट्रा एक तो होता है कि एक क्वालिफाइड डर्मैट है उनकी क्लिनिक है जहाँ पे ये प्रोसीजर्स हो रहे हैं कई ऐसे पार्लर्स हैं जो दावा करते हैं कि वो ये प्रोसीजर्स करते हैं ऑफ कोर्स वहाँ पे कोई
डर्मैट नहीं होता, कोई डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होता। तीसरा, कई क्लिनिक्स होते हैं जो कई पॉश एरियाज में होते हैं, अच्छे बड़े क्लिनिक्स होते हैं, लेकिन वहां पे भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन वो इस तरह के प्रोसीजर्स कराते हैं ना, बिकॉज स्किन इज आर लार्जेस्ट ऑर्गन, और स्किन हमारे मतलब एक तो हेल्थ का एक पैरामीटर है ही कि अगर आपकी स्किन हेल्दी है मतलब आपकी बॉडी हेल्दी होगी, पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे अपीयरेंस को, हमारे सेल्फ एस्टीम को भी बूस्ट अप करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे में कितना जरूरी है कि हम सही जगह जाए, और सही जगह क्या है, क्यों जरूरी है कि क्वालिफाइड डर्मैट के जरिए ही हम ये प्रोसीजर्स करें डॉक्टर? ओके, इसका एग्जांपल मैं लोगों के लिए देना चाहती हूँ कि अगर आपको पेट दर्द हो रहा है तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे? तो आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो नहीं जाएंगे। अगर फीमेल है तो आप हम्म। किसी पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे। जो बीमारी है, जिसका जो डॉक्टर है, आप उसी को दिखाना प्रेफर करेंगे, हम्म, क्योंकि बिल्कुल। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ रिजल्ट। ओके, राइट। अभी जिस तरह से आपने बताया कि अभी ब्यूटी पार्लर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, एंड वी कैन से कि नॉर्मली कोई भी डॉक्टर डॉक्टर भी नहीं है, नॉर्मली कोई मेडिकल पर्सन है, फार्मेसी पर्सन है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये है, लोगों को पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ योर मैटर ऑफ योर स्किन। जो आपने बताया कि लुकिंग के लिए लोग ये करते हैं, बट इट कैन अफेक्ट योर फेस वेरी बैडली, कि आपको फिर कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आपको कुछ भी स्किन से रिलेटेड इशू है तो आप कंसर्न डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं, किसी और के पास ना जाएं, क्योंकि उससे जो साइड इफेक्ट होगा उसको ना तो वो ठीक करेगा ना कोई और ठीक कर सकता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा आपको। तो तब सबसे पहले डॉक्टर की डिग्री चेक करें, तो ये मेरी एडवाइस है। बिल्कुल, तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि आप जिनको दिखा रहे हैं, वो एक क्वालिफ़ाइड डॉक्टर हैं, और आप जिनसे प्रोसीजर्स ले रहे हैं, इफ एनी, तो भी वो एक क्वालिफ़ाइड डर्मैट है। दूसरी जगह हो सकता है आपको लगे कि इनिशियली थोड़े कम पैसों में काम हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान इतना ज़्यादा होगा कि वो कैलकुलेशन के बाहर हो जाएगा फिर। तो प्लीज़ सेव योर एनर्जी, सेव योर टाइम, सेव योर मनी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेव योर स्किन, save your health by going to the right person, which is a qualified dermat, in case you have anything to do with your skin, scalp, etc. एग्जैक्टली। डॉक्टर, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से दूसरी जगहों पर भी लोग पहुंच जाते हैं, पेशेंट्स पहुंच जाते हैं, और हार्मफुल उनके लिए वो ज्यादा हो जाता है, ऐसे ही एक और चीज है, और हमारी सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है, विच इज होम रेमेडीज, विच इज गोइंग टू द केमिस्ट शॉप एंड गेटिंग अ टॉपिकल एप्लीकेशन क्रीम फ्रॉम देयर। तो बहुत रूटीन में ये होता है, और आमतौर पे किसी डर्मैट के पास जाने से पहले हम किचन की तरफ भागते हैं, कोई होम रेमेडी करने की कोशिश करते हैं, पपीता लगा लो, पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा, या फिर केमिस्ट शॉप में जाके कि केमिस्ट वाले भैया से बोल देते हैं कि देखो कुछ हो रहा है, स्किन पे छाइयाँ हो रही है, दाग हो रहे हैं, कोई क्रीम दे दो। और जो क्रीम्स हम लगाते हैं, क्योंकि इनिशियली स्टेरॉइड बेस्ड है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके नजर आते हैं, देन वी गेट एडिक्टेड टू इट। हमें लगता है कि देखो हमने तो खुद ही अपने आप को ठीक कर लिया है, ये तो कोई मसला ही नहीं था, डॉक्टर के पास जाना ही क्यों था। ओनली जब बहुत वक्त गुजर जाता है, वी रियलाइज कि हमारी स्किन अब एडिक्ट हो गई है उस क्रीम की, और वो क्रीम नहीं लगाओ तो स्किन पे बहुत बुरा असर हो रहा है, या फिर दूसरे प्रॉब्लम्स हो गए, कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और तब समझ में आता है कि पहले ही डॉक्टर के पास आते तो ये लंबा जो कोर्टशिप है ये होता ही नहीं। तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि होम रेमेडीज को लेकर, ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट को लेकर, टॉपिकल एप्लीकेशंस को लेकर, इन्फ्लुएंसर्स आजकल इतने सारे हैं, और हम सब उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली, जो कि अगेन क्वालिफाइड डर्मैट कई बार नहीं भी है। तो ये सब फॉलो करना कितना हार्मफुल है, और इज इट ओके प्रैक्टिस टू? ओके, एक है होम रेमेडी, एक है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज ऑल्सो ए मेडिकल perspective, so we can go to ayurveda, but we are allopathic, so we don't know about ayurveda also takes some time, but I don't know about its result. So आयुर्वेद के भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। फायदा ये है कि पता मतलब रिजल्ट आता है थोड़ा टाइम के बाद। नुकसान ये है कि ये टाइम बहुत लेता है।
ओके। थर्ड सेकंड थिंग इज हर्बल और यू कैन से होम रेमेडीज। होम रेमेडीज में हमें पता नहीं होता एक्चुअल कंटेंट क्या है, क्योंकि जो मेडिसिन बनती हैं वो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंट के कुछ मिक्सचर से, कुछ रेशो से बनाई जाती हैं और उसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करके फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है जो कि डर्मेटोलॉजी टेस्टेड होता है। जो होम रेमेडीज होती हैं वो टेस्टेड नहीं होती हैं, वो रॉ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। थर्ड थिंग जो आपने बोला कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो इसमें सबसे मेन इश्यू जो आता है उसको बोलते हैं TSDF। TSDF मीन्स टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज्ड फेस। टॉपिकल स्टेरॉइड एक तरह की मेडिसिन है जो हम बहुत सारे इंडिकेशंस में यूज़ करते हैं। फेस पे भी इसको यूज़ करते हैं, बट वो कुछ इंडिकेशन, स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं जो भी ओनली बहुत ही कम समय के लिए यूज़ की जाती है। अगर इनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये थिनिंग करती है, थिनिंग ऑफ द स्किन करती है। सेकेंड थिंग ये हाइपर पिगमेंटेशन करती है। थर्ड थिंग ये हाइपर ट्राइकोसिस मतलब हेयर ग्रोथ बढ़ा देती है। स्टार्टिंग में इसका फंक्शन है कि ये लाइटनिंग करती है, बट ओवर द टाइम इट कॉजेज हाइपर पिगमेंटेशन। सो जब आप 3 to 4 months के बाद इसको अप्लाई करने के बाद आते हो तो यू विल सी अ थिन लाइन्स, थिन वेसल्स ऑन योर फेस। मीन्स skin is already thinned, your vessels started looking out, and hypertrichosis, facial hair also present there. सो उस टाइम उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है भी और नहीं भी, दोनों चीज़ें हैं, तो इट टेक्स अराउंड 8 to 12 months अप टू। सो better to not to use these things. First go to your dermatologist only and ask them if it is good or not, or they will prescribe to you. बिल्कुल, ये बिल्कुल वही बात है जो आपने पहले भी कहा था कि अगर आप अपना वक़्त, अपना पैसा, अपना टाइम और अपनी हेल्थ, अपनी एनर्जी सब बचाना चाहते हैं, तो पहले डर्मैट के पास जाइए, पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए। उनसे उनकी एडवाइस लीजिए। एक और चीज़ जो आपने कही कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है एलोपैथी में और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो असर दिखेगा। एक मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ डॉक्टर कि ये जो मेलाज़्मा है, ये ओवरनाइट पूरे चेहरे पे हो जाता है या ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है? क्योंकि अगर ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है और इनिशियली ही हम समझ जाएँ कि अच्छा ये हमें स्पॉट्स हो रहे हैं, तो हमारे पास वक़्त है डॉक्टर के पास जाके उसको वहीं पे कंट्रोल करने का। तो क्या जल्दी अगर हम पहुँचते हैं, तो इससे फ़ायदा होता है? यस, मिलाज्मा 3 टाइप्स का होता है, एपिडर्मल, डर्मल एंड मिक्स्ड। अगर ये एपिडर्मल लेवल पर है इट मीन सुपरफिशियल लेवल तक है तो इट कैन बी इजीली रिमूव्ड। बट अगर ये डर्मल लेवल तक पहुंच जाता है या मिक्स लेवल तक पहुंच जाता है तो इसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और दूसरी बात आपने पूछी, ये ओवरनाइट नहीं होता है, इट टेक्स ईयर्स। एज आई ओके। टोल्ड यू कि हॉर्नल फैक्टर्स एंड यूवी रेडिएशन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो धीरे 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 रेडिएशंस ये एक्यूमुलेट होती हैं एंड देन मेलानोसोम्स अपना काम करके मेलानिन प्रोडक्शन करती है। तो मतलब पहले हमें किस फॉर्म में दिखते हैं? साइन्स क्या होते हैं जिसको देखकर हमें अलार्मिंग पोज़ीशन में आ जाना चाहिए और एक डर्मैट से मुलाकात करनी चाहिए? मोस्ट कॉमनली ये अपने मलार एरिया से प्रेजेंट होते हैं, तो थोड़े छोटे छोटे ग्रे या थोड़े डार्क, स्टार्टिंग में ग्रे या फिर ब्राउन कलर के पैचेस बनते हैं। डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कॉन्फ्लुएंट भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में कम होते हैं। अगर आपको मतलब स्टार्टिंग में ये ज़्यादा बड़े एरिया पे नहीं होते हैं, थोड़े छोटे छोटे एरिया पे होते हैं। फोरहेड पर भी आप देख सकते हैं। फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमनली मलार एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल, तो अगर इन एरियाज़ में आपको दिख रहे हैं, तो प्लीज़ कंसल्ट कर लीजिए एक डर्मैट को, तो जल्दी ही आप मैनेज कर पाएँगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये भी एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो आमतौर पे पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर कि क्या परमानेंटली ठीक होगा मेलाज़्मा? परमानेंटली मे बी और मे नॉट बी, बट इट इज़ अ रिकरेंट कंडीशन। ओके। क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और जो इंटरनल फैक्टर्स हैं हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एज आई टोल्ड, हार्मोनल फैक्टर, फीमेल्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वी कैन नॉट रिमूव दोज हार्मोन्स। एंड सेकेंड हुँ, थिंग, यूवी रेज को वी कैन नॉट रिमूव। सो वी कैन, व्हाट वी कैन डू इज ओनली फोटो प्रोटेक्टिव मेजर्स। हुँ। सो टाइमली ट्रीटमेंट लो, फोटो प्रोटेक्टिव मेजर्स रखो, पॉसिबल है कि आपको दोबारा नहीं होगा। बिल्कुल।
और मेंटेनेंस थेरेपी क्या है? मतलब जैसा कि आपने कहा कि ये तो वापस भी आ सकते हैं, हो सकते हैं। तो ऐसे में मेंटेनेंस थेरेपी क्या है? मेंटेनेंस थेरेपी ये है कि इट डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी ऑफ मिलाज़्मा, एक्सटेंट ऑफ मिलाज़्मा। अगर आपको सीवियर मिलाज़्मा था पहले, काफ़ी ज़्यादा मिलाज़्मा था, तो आपको डॉक्टर से ही एडवाइस लेनी होगी, डर्मेटोलॉजिस्ट से एडवाइस लेनी होगी। यू हैव टू कम फॉर फ़ॉलो-अप कि उन्होंने आपको कितने टाइम पर वापस बुलाया है। कुछ चीज़ें होती हैं वो थोड़ी-सी रह जाती है, मिलाज़्मा अगर थोड़ा-सा रह जाता है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यू हैव टू अडैप्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट फॉर दिस कि इतना मिलाज़्मा मुझे रहेगा ही रहेगा। सेकंड थिंग होती है, एक बार ठीक होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया फोटो प्रोटेक्टिव मेजर्स आपको लेने ही लेने हैं। और अगर ये दोबारा आपको दिखने लगे तो यू हैव टू गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट, यू डोंट हैव एनी चॉइस। हुँ, बिल्कुल। कुछ सवाल है हमारे व्यूअर्स के, मैं वो भी ले लेती हूँ। गिनी शर्मा है, उनका सवाल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लेज़र थेरेपी इन ट्रीटिंग मेलास्मा? लेज़र में एज़ आई टोल्ड अर्लियर, लेज़र में कुछ तरह की लेज़र्स आती हैं जो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती हैं, पूरी तरह से रिमूव नहीं करती हैं। उसके अंदर एनडीआर लेज़र होती है। सेकंड थिंग होती है कार्बन पील लेज़र। ये हुँ, हुँ। लेज़र्स होती हैं जो उनको रिमूव करने का काम करती हैं। सो यू कैन गो फॉर इट बट इट्स लास्ट ऑप्शन। हुँ। उससे पहले भी आप बहुत तरह के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो आपने टेक्निक्स प्रोसीजर्स बताए थे, चाहे वो केमिकल पील हो या लास्ट में लेज़र तक आना हो, बीच में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। हाउ सेफ आर दे एंड हाउ पॉकेट फ्रेंडली आर दे? They are totally safe. If you go to a dermatologist, they are totally safe. But if you go anywhere out who don't have any dermatologist or don't have any qualified doctors, so you have high risk of getting irritation, high risk of getting allergy for that, and high risk of getting hyperpigmentation more. ओके, राइट। अम, हमारे साथ यहाँ पे पूजा विश्वकर्मा है। पूजा का सवाल है, हाउ डज़ हार्मोनल फ्लक्चुएशन कंट्रीब्यूट टू मेलास्मा? या मोस्ट कॉमनली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल्स के अंदर होते हैं वो मिलाज्मा एग्रीवेट करते हैं। उसमें भी मोस्ट कॉमनली प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। जैसे पीरियड्स के टाइम, ओव्यूलेशन के टाइम प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओव्यूलेशन के तुरंत बाद, तो चांसेस है उस टाइम आपका मिलाज्मा थोड़ा सा ज़्यादा दिखने लगे। ओके। हुँ, हुँ। ये भी आपसे डॉक्टर जानना चाहेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन्स की हम बात कर रहे थे और प्रेगनेंसी में चूँकि अगेन रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है मेलास्मा का और अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ख़ास तौर पे कई ऐसे सनस्क्रीन ओवर द काउंटर हमने देखे हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि इफ यू आर प्रेग्नेंट यू आर इफ यू आर लैक्टेटिंग तो आप ये ना लें या फिर डॉक्टरी सलाह के बाद ही लें या ओवर द काउंटर मेडिकेशन कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझ सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेग्नेंट वुमन को अगर मेलाज़्मा हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए? प्रेग्नेंट वीमेन है तो दे कांट टेक मेडिसिन फर्स्ट ऑफ ऑल। हुँ, और there are some oral medications which can be taken but better to avoid the oral medications, so topical treatment ही हम usually करते हैं, तो उसके अंदर हम chemical peeling use कर सकते हैं, better अच्छा। है option. Second thing, आपको sunscreen properly use करनी है but हुँ, not to the over counter drugs. हुँ। डॉक्टरी सलाह डॉक्टर से की ही सलाह से ही सनस्क्रीन आप लें। लें। या कई बार प्रेग्नेंट वुमन में पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद अपने आप मेलाज़्मा चला भी जाता है, फेड अवे भी होता है और कई बार वो रह जाता है। ये भी होता है डॉक्टर? यस यस, ये सब हार्मोनल फैक्टर हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से ही मेनली ये चीज़ें होती हैं। ओके। पूजा शर्मा हमारे साथ है। उनका सवाल है, व्हाट टॉपिकल एजेंट्स आर कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट मेलाज़्मा? टॉपिकल डीमेलाइजिंग एजेंट्स होते हैं जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड होता है, कोजिक एसिड है, एजिलिक एसिड है, ट्रिपल कॉम्बिनेशन बेस्ड ट्रीटमेंट है। ये कॉमनली हम इसी ही यूज़ करते हैं, बट परसेंटेज और रेशियो के अकॉर्डिंग कि कब किसको क्या यूज़ करना है वो ट्रीट अकॉर्डिंग टू द स्किन। राइट। कई लोग जो है अगेन ये एक हमारी सोसाइटी में बहुत आम टेंडेंसी है कि मान लीजिए मैं गई मेलाज़्मा का ट्रीटमेंट करा रही हूँ, प्रिस्क्रिप्शन लेकर आई, उसमें बोला गया है कि 2 महीने मुझे दवाई खानी है या टॉपिकल एप्लीकेशन साथ में है।
मैंने 1 महीने ट्रीटमेंट लिया, मुझे उसपे कुछ सुधार दिखा, असर हो रही है, तो मुझे लगा बस हो गया, तो आई विल स्टॉप टेकिंग माय मेडिसिन विदाउट इवन कंसल्टिंग माय डॉक्टर। उसके बाद फिर अगर 1-2 महीने बाद लगेगा कि अच्छा वापस हो रहा है, तो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, मैं फिर जाऊँगी डॉक्टर से दवाई ले लूँगी, डॉक्टर से नहीं, केमिस्ट से दवाई ले लूँगी क्योंकि मेरे पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, मैं लगाने लगूँगी या दवाइयाँ लेने लगूँगी। कई बार ये भी होता है कि डॉक्टर लिख देते हैं कि 15 दिन ये दवाई खानी है या ये टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए ये क्रीम है, लेकिन हम महीनों-महीनों तक लेते रहते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं फ़ॉलो-अप के लिए। क्या ये नुकसानदायक हो सकता है? Yes, it can cause TSDF, as I told, topical steroid damaged face. बहुत कॉमनली प्रेजेंट होता है क्योंकि जो मैंने आपको ट्रिपल कॉम्बिनेशन बताया उसमें इनिशियली स्टेरॉइड होता है जो कि हम ओनली 1 और 2 वीक्स के लिए देते हैं, जो स्टार्टिंग में एज ए मेडिसिन काम करता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हो तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आप जैसे बोल रहे हो कि 1 महीने 2 महीने वो अपने आप ही ट्रीटमेंट लेते रहता है, उसको जब हुँ। उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा दिखने लगते हैं तब वो वापस आता है। जबकि उसको इनिशियली बोला जाता है कि आपको 15 दिन में वापस दिखाना है या फिर आपको इसको यूज़ नहीं करना है। हुँ, तो ये हुँ। बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है इस फेस के मैटर में। बिल्कुल, तो जितना ज़रूरी एक डॉक्टर से संपर्क करना है, उतना ही ज़रूरी है कि हम उस डॉक्टर पे भरोसा करें और उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए, उसे फ़ॉलो करें। सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल हो सकता है, तो प्लीज़ ये ना करें, डॉक्टर को दिखाएँ और डॉक्टर की बात मानें। टीना भार्गव हमारे साथ हैं और उनका सवाल है व्हाट रोल डज़ सनलाइट एक्सपोज़र प्ले इन एक्ज़ैवरेटिंग मेलास्मा? इस पर हालाँकि हमने बात की है, लेकिन सन एक्सपोज़र एक बड़ा कल्प्रिट है। तो ऐसे में कुछ और आप बताना चाहेंगे या डूज़ एंड डोंट्स आप बताना चाहेंगे सन को लेकर खास तौर पर? सन एक्सपोज़र ओवर द होल डे सन एक्सपोज़र इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। एज़ आई टोल्ड कि स्टार्टिंग में 10 ओ क्लॉक अप टू 4 ओ क्लॉक हाई यूवी रेज़ प्रोड्यूस होती हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारी स्किन को। तो उस टाइम मेनली हमें प्रिवेंशन रखना है, उस टाइम हमें सावधानी रखनी है, उस टाइम हमें फोटो प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ करने हैं। जो मैंने बताया कि सनस्क्रीन आपको प्रॉपरली अप्लाई करनी है और फेस को आपको किसी चीज़ से कवर करना है। कवर हुँ, में भी आप मास्क यूज़ कर सकते हैं, फेशियल मास्क यूज़ कर सकते हैं, हैट यूज़ कर सकते हैं, कैप यूज़ कर सकते हैं और वो भी आपका लाइट कलर होना चाहिए सो दैट कि मोर यूवी रेज़ कैन बी रिफ्लेक्टेड मोर। हुँ, राइट। अम, बहुत एक आम सवाल होता है, कैन मेलास्मा टर्न्स इंटो कैंसर? नो, इट डज़न्ट। हुँ। अच्छा, क्या कभी एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से भी मेलास्मा हो सकता है? मेलास्मा तो नहीं होता है बट अदर जो कंडीशन होती हैं जो कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिसको हम बोलते हैं कॉस्मेटिक कंडीशन से या फिर पिगमेंट से वो इसके साथ मर्ज हो सकती है। मेलास्मा इटसेल्फ डजंट इज नॉट कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन और एनी एलर्जी। हुँ, हुँ। सनस्क्रीन पर हम बात कर रहे थे डॉक्टर, एक और बात मैं जानना चाहूँगी क्योंकि अभी समर्स हैं, समर वेकेशंस हैं और कई लोग बाहर जाते हैं वेकेशन पे। जब बीच वेकेशन पे हम जाते हैं, जैसे कि पहले भी हमने बात की, तो हम सनस्क्रीन रखते हैं। लेकिन अगर हम अपहिल जा रहे हैं, माउंटेन वेकेशन पे जा रहे हैं, तो हमें लगता है वहाँ तो सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। हम स्नो में कई बार जाते हैं और सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इससे कई बार हमारे चेहरे पर हमें झाइयाँ या काफ़ी डलनेस, टैनिंग नज़र आती है। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल क्या अपहिल भी करना चाहिए? क्यों ज़रूरी हो जाता है? देखो जो सन राइज है और सनसेट है उसके बीच में जो टाइम होता है हमको उस पूरे टाइम में ही सनस्क्रीन यूज करनी होती है क्योंकि जो क्लाउडी एक टाइम होता है जब क्लाउड्स होते हैं तो उस टाइम यूवी रेज इतनी नहीं होती। इंफ्रारेड रेज ज़्यादा कॉमनली होती है, वो भी मिलाज्मा को बढ़ाने का काम करती है। तो उस टाइम भी हमें रख रहना है और जब भी हम इंडोर भी हैं, हम हमारे घर में भी हैं, तो भी हमें सनस्क्रीन यूज़ करनी है क्योंकि जो हमारी आजकल जो लाइट्स आती हैं, उसमें भी यूवी रेज़ प्रोड्यूस होती हैं। ओके। तो अगर आप एलईडी लाइट के नीचे हैं, अगर आप अपने लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर ज़्यादा वक़्त बिताते हैं, जो कि हम में से ज़्यादातर लोग बिताते हैं, तो भी हमारी स्किन इतनी ही प्रोन है डैमेज को लेकर। डॉक्टर, एक और सवाल है कि कितना वक़्त आमतौर पे लगता है अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं मेलाज़्मा का, तो उसे ठीक होने में या एक सर्टेन लेवल पर आने में? ओके, इट डिपेंड ऑन हाउ सीवियर मिलाज़्मा इज़ कि एन एक्सटेंट कितना है और कौन से टाइप का मिलाज़्मा आपको है। अगर आपको माइल्ड मिलाज़्मा है, तो इट टेक्स मिनिमम 6 वीक्स
to appear the results. और अगर सीवियर मिलाज़्मा है तो आपको 2 to 3 मंथ्स लग सकते हैं। बट आपको मिनिमम रिज़ल्ट आने में 6 to 8 वीक्स तो लगता ही लगता है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हो, प्रॉपर प्रोटेक्शन ले रहे हो उसके बाद। ओके। और बिफोर वी सम अप द होल सेशन, कोई टेक होम मैसेज आपका हमारे व्यूअर्स के लिए? टेक होम मैसेज ये है कि आप किसी से भी जाके, किसी भी अननोन पर्सन से, किसी भी मेडिकल शॉप से, किसी भी आयुर्वेदा से, मतलब डायरेक्ट जाके दवाई ना लें, स्पेशली स्किन से रिलेटेड और स्पेशली फेस से रिलेटेड, क्योंकि फेस आपका सोशल एक थिंग है जो आपको सबसे पहले किसी से कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले फेस दिखता है, जो अगर ख़राब हो गया तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो आपको अगर कुछ भी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ। आप उनकी डिग्री देख सकते हैं, कोई भी अगर डर्मेटोलॉजिस्ट है क्वालिफाइड, वो अपने नाम के नीचे डिग्री ज़रूर लिखेगा। हुँ। बिल्कुल। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई डॉक्टर शिवानी सैनी, और काफ़ी जो डाउट्स थे, जो सवाल थे हमारे मन में, उनके जवाब हमें मिल गए, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन ये रहा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू मैम। एंड व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन टुडेज़ सेशन, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़ते रहें, हमारे साथ कनेक्टेड रहें हमारे ब्यूटीफुल स्पॉटलेस स्किन पेज पर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड टू ऑल ऑफ यू। गुडबाय।